Greetings to all my countrymen on the occasion of Ekam, Azadi Ka Amrit Mahotsav. As we are celebrating the 75 years of Indian independence, we have put together a collage from eminent speakers sharing their sentiments on this momentous occasion and also envisioning our India of tomorrow. Hope all of you have unfurled the Tiranga at your home and workplace in line with the amendments of the Flag Code of India. The first episode published yesterday showcased eminent dignitaries from diverse backgrounds like culture, branding, entrepreneurship, skill development, education, fitness and Ayurveda. Well, I will like to talk about a domain which was not touched upon in the first episode, travel and tourism. Ekta Tatha Bhinnata, that is unity in diversity, is India's forte, and I bear proud testimony to the fact that we are a multi-religious, multi-ethnic, multicultural and a multilinguistic society. It is a privilege to be from a country which houses Taj Mahal, one of the 7 wonders of the world, and 40 other World Heritage Sites. From Kashmir to Kanyakumari, from the run of Kutch to Northeast India, Hindustan offers a platter of choices to travel. You can choose to get lost in the barrens of Ladakh or the blues of Andaman and Nicobar Island, the greens of the northeastern states or the desert sands of Rajasthan. The travel and tourism industry also hugely contributes to our GDP and it is expected to rise in the years to come. With the solo travel concept being pursued of late, security of travelers should be given due importance. Also, a small request to the Ministry of Tourism would be to identify and incentivize travelers who can play the role of brand ambassadors to promote different aspects of tourism in the states. I am indebted to all the speakers in episode 1 and 2 who have joined hands in sharing their emotions regarding our Independence Day celebration. Jai Hind, Jai Bharat. आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम सबको संकल्पित होना है पृथ्वी एवं हिमालय को सुरक्षित करने के लिए। वही हमारा सही जीवन है। भारत एवं विश्व को भविष्य में अमृत पाना है तो हमें संस्कृति की पालना करनी होगी, यानी संस्कृति की पालना के लिए हमें 5 तत्वों की शुद्धता में जाना होगा। 5 तत्व की शुद्धता तभी हम पालन कर सकते हैं जब हम आवश्यकता में जिए, अनावश्यकता को त्यागना होगा। मानव का सबसे पहला उद्देश्य अपने आप को स्वस्थ करना होना चाहिए। उसका स्वभाव है वह खोज करना है। यदि वह स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ खोज करेगा। मेरा आप सभी को शुभकामनाएं। Greetings of the day to all. If we take a recap of the post-independence, the initial 2 decades, government had struggled to develop and self-sustain the country in the field of manufacturing precisely, so that employment could be generated and the GDP of the country could be stabilized. Accordingly, they had developed many of the public sector undertakings. Going through the years, in the 10th 5-year plan from 2002 to 2007, the basic requirement of the electricity was felt and accordingly the Electricity Act was enacted. If we take the last 5 years of the 13th 5-year plan of the Government of India, we see that most of the sectors have now been brought to a sustainable level and they are reporting growths. Focusing on the today's topic of Ekam, that is the Azadi Ka Amrit Mahotsav, I find that the present government of India and the people of India have really awakened themselves and now really appreciating the concepts of revitalizing the independence passion by celebrating the unsung heroes of the pre-independence, the Kargil war, precisely the warriors who had shown their devotion during the pandemic, and this has been quite evident when we see the rechristening of most of the names on these unsung heroes in respect of railway stations or many cities in different parts of the countries.
Atmanirbhar Bharat has been another factor which has been prominent in the ACAM. Here, the government has tried to develop many of the MSME industries. Recognition of Indian leadership to define Paris Agreement for net zero and accepting the 2070 as the deadline has also been quite worthwhile appreciating. Upholding our concept and business model for oil and gas procurement from Russia despite NOPEC, the concept initiated by United States, and the sanctions thereof have also been validated. Popularizing the renewable sector with target of 500 gigawatt by 2030 by bringing the policies of renewable purchase obligations and the hydrogen generation policy in February 2022 are also worth appreciating. The smart city concept is now demanding power, and now the government is having balanced and dynamic views about coming up with new fossil fuel projects of 25 megawatt by FY25. The hydel sector in J&K is being promoted, and even in Arunachal Pradesh, lot of potential for hydel sector has been identified and is being enacted. To put in the many diverse actions which have been initiated by the government during the 75th year of celebration of India's independence are worth appreciating. I, in my personalized capacity and without any bias and prejudice, submit the same, and hereby it is Manoj signing off from the same. नमस्कार, मेरा नाम स्नेहलता सैकिया है। मैं आसाम से हूँ और दिल्ली में रहती हूँ। इस 15 अगस्त को सबके साथ हर घर तिरंगा फहराकर हमारे देश की आज़ादी की 75वीं सालगिरह मैं भी मनाऊंगी। क्योंकि मैं एक शेफ़ हूँ तो मैं 2 बात खाने के मामले में ज़रूर बोलना चाहूँगी। हमारे तिरंगे का जो लास्ट में एक कलर है वो है हरा रंग। हरा रंग जो प्रतीक होता है वो होता है फसल, उन्नति, हरियाली। तो मैं ये आशा रखती हूँ कि हमारा जो देश है, आने वाला देश भरा पूरा खेत खलिहान भरे होंगे। और जैसे हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोला जाता है, तो हम खाने के मामले में भी हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। अगर राजस्थान हमारा दाल बाटी बनाता है तो वही बाटी जो है वो बिहार में जाके लिट्टी हो जाती है। तो हमारे खाने का तरीका अलग है लेकिन खाना एक ही है। क्योंकि मैं उत्तर पूर्वी भारत से हूँ तो मैं उत्तर पूर्वी भारत के बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हमारा जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है भारत का वो जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। तो क्योंकि हम पिछले 2 सालों में हम लोगों ने एक बहुत बड़ी महामारी से हम गुजरे हैं। जब वो नया था तो हम सब लोग वापस अपने आयुर्वेदा और अपने दवाइयों पे जड़ी बूटियों पे हम लोग गए थे। तो क्यों ना हमारा देश वापस इसी जड़ी बूटियों पे रिसर्च करे और नई नई दवाइयाँ निकालें और हम आयुर्वेदा के हिसाब से अपने शरीर को स्वस्थ रखें ताकि हमें कोई और नई बीमारी ना हमें आके हमारे को महामारी हो। तो दूसरा, मैं अपने देश को हरा भरा देखना चाहूँगी। हर नागरिक को एक एक पेड़, एक एक पौधा कहीं पे भी लगाना चाहिए। चाहे वो फ्लैट में रहते हों शहरों में, चाहे वो गांव में रहते हों, कहीं ना कहीं उनको पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए। हमारे पृथ्वी में जितना मैं पढ़ती हूँ उतना मुझे लगता है कि हमारे पेड़ जो हैं कम होते जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जाते हैं। और हम सभी नागरिक का, हम सभी का ये दायित्व है कि हम इसमें हिस्सा लें। मैं भी लेती हूँ, मैं एक फ्लैट में रहती हूँ लेकिन मेरे 3 बालकनी में मैंने अपने पूरे गमलों से भर रखा है। दूसरा, एक दूसरे को प्यार करें और जानवरों से भी प्यार करें। सबका अधिकार है इस पृथ्वी में रहने का। जब जीव है तो हम सबका अधिकार है जीने का। जय हिंद, जय भारत। Greetings on Azadi Ka Amrit Mahotsav as we celebrate 75 years of India's independence. I am Dr. Himabroto Das and I am joining you from Jorhat Medical College in Assam. Over the last 75 years, our life expectancy has significantly gone up
Our per capita income has also gone up, as has the average spending on health. As a mental health professional, it is heartening that there is growing awareness towards mental illness as well as positive mental health. India, with its unique geopolitical location, will be a force to reckon with in the years to come. To our advantage, we have a vibrant and young demographic dividend which will certainly dominate the world stage as we go ahead in the decades to come. Wishing you all a very happy Independence Day. Jai Hind. नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। एक समय था जब मैं कभी किसी कंट्री को विज़िट करता था, तो एक समय था जब मुझे उन्हें बताना पड़ता था कि इंडिया मैप पे कहाँ है। लेकिन आज ये ऐसा समय है और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज अगर मैं किसी से बात करूं और वो कहे कि इंडिया मैप पे कहाँ है, तो ये उसकी इनकेपेबिलिटी होगी, हमारी नहीं। आज जो हमने ये मकाम हासिल किया है, आई थिंक इसका क्रेडिट हम सभी हिंदुस्तानियों को जाता है। हमने देश विदेश में अपना नाम कमाया है, इसको बरकरार रखने की ज़रूरत है। और इसके लिए मेरे हिसाब से जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक चीज़ जिस पे हम सभी को काम करना चाहिए वो है हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। मैंने देखा अच्छा होने के बावजूद हम अपने आप को अच्छा दर्शा नहीं पाते। परसेप्शंस पॉजिटिव क्रिएट करने पे हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ये चाहूँगा कि हम जब भी किसी के आगे अपनी बात रखें तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे जोश के साथ अपने आप को प्रेजेंट करें। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसको प्लीज़ हाईलाइट करिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपने सही करी है तो उसको मार्केट करिए। तो सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इस सब से हमें शर्माना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए इस इवेंट को, इंडिया के 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट होने के इवेंट को हम इस तरह से सेलिब्रेट करें कि इंडिया के इमेज को बढ़ावा मिले। तो क्या आपने ऐसे लोग देखे हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो इंडिपेंडेंस का मतलब ही नहीं समझते? अपनी फ्रीडम को मिसयूज़ नहीं किया जाना चाहिए। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी ऐसा करें जिससे दूसरे को दुख हो, नुकसान पहुंचे और ओवरऑल इंडिया की इमेज हार्म हो। इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आप फ्रीली इस तरह के डिसीजंस लें जिससे हमारे देश को फ़ायदा हो, हर नागरिक को फ़ायदा हो, आपकी फैमिलीज़ को फ़ायदा हो और हम एक साथ ग्रो कर सकें, डेवलप कर सकें। तो ये विश्वास दिलाइए अपने आप को कि आप इस लायक हैं कि कभी भी आप ऐसा गलत होते देखें तो उसे रोक सकें। अपने आप को भी उसमें इन्वॉल्व ना होने दें और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज़रूर इस इवेंट को सही तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। माई बेस्ट विशेज़ आर विद यू ऑन 75 years of the completion of Indian independence. That's a big thing. It's your day today. Enjoy. आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75वां स्वतंत्रता दिवस, डायमंड जुबली। बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि भारत जैसे देश में मेरा जन्म हुआ, यहाँ की संस्कृति व सभ्यता में पला बढ़ा और हम जैसे कि विकासशील थे अब काफी हद तक विकसित होते जा रहे हैं। विकसित श्रेणियों में हमारा स्पोर्ट्स, खेल के प्रति लगाव, नई जागृतियां और नए नए तौर तरीके जिन्हें हम जीना सीख रहे हैं। उन्हीं में एक तौर तरीका मैंने भी शामिल किया है, फिल्म और सिनेमा। फिल्म सिनेमा जैसे कि आप जानते हैं काफी समय से भारत का एक विशेष अंग रहा। आर्थिक रूप से देखें तो सिनेमा भी एक बहुत बड़ा विशेष रूप प्रदान करता है भारत में। तो जैसे कि देखेंगे कि बदलते भारत के साथ कई OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं, कई वेब सीरीज आई हैं जिन्होंने पुरानी चीजों का अस्तित्व जैसे मानो खत्म ही कर दिया। तो इस स्वतंत्रता के नए संग्राम के साथ हम इसी तरह और नई शुरुआत चाहते हैं और सरकारी नियमों में बदलाव चाहते हैं जिससे कि कलाकृति में काफी सुधार व संरक्षण हो सके। धन्यवाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव का
अर्थ बड़ा गूढ़ और गहरा होता है। अब प्रश्न ये है कि हम इसे कितना महत्व देते हैं अपनी समझ के आधार पे। देखने में लगता है कि झंडा फहराना, हर घर में झंडा फहराना एक रूटीन प्रक्रिया है। अमृत का अर्थ होता है जैसे जीवन में प्राणवायु है, शरीर को ऊर्जा देता है, शरीर को जीवंत ही नहीं रखता बल्कि शक्ति देता है। इस प्राणमय ऊर्जा को हम अमृत कहते हैं शरीर के दृष्टिकोण से। अगर इसी को राष्ट्र के दृष्टिकोण से समझें तो हमारी संस्कृति हमारी प्राणमय ऊर्जा है। हमारी संस्कृति का धरोहर, हमारा इतिहास, हमारी परंपरा, हमारे पूरे भविष्य के निर्माण में ये मूलाधार का काम करती हैं। सिर्फ हम एक्टिविटी से नहीं, हम सक्रियता से नहीं, हम अपने आदतों से तो जोड़ते ही हैं कि कम से कम वर्ष में एक बार 2 बार हम अपने घरों में, अपने राष्ट्र ध्वजों में हम इसे फहराते हैं। लेकिन जब हम इसे मुहूर्त मान करके, जब इसे हम उत्सव मान करके अपने अन्य उत्सवों के समान देखते हैं और इसे जीवन के अमृत के बराबर समझकर राष्ट्र के अमृत को याद करते हैं तो हमारी सांस्कृतिक ऊर्जा जगती है। हम इसमें भावनात्मक रूप से जुड़े और सक्रियता से जुड़े। ग्रामीण युवाओं में उद्यमवृत्ति, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति को जागृत करना एक चुनौती नहीं, एक आवश्यक पहल बन गया है। मैं वैज्ञानिक चिंतक और सामाजिक उद्यमी के पेशे से जुड़ा होने के कारण और उद्यम प्रबंधन से गहन अनुभव और शोध के आधार पर बहुत कुछ सीखा। और मैंने ये सीखा कि युवाओं में एक मानवीय ऊर्जा का, एक चेतना का अमृत धारा सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। उनमें सीखने की और जानने की और कुछ करने की एक बहुत ही बड़ी ललक सी होती है, रुझान भी होती है, लेकिन वे दिशाहीन हो जाते हैं। किसी कारणों से सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण अक्सर दिशाहीन हो जाते हैं। इस चेतना को, इस अमृत धारा को सुनियोजित प्रशिक्षण के द्वारा जागृत किया जा सकता है, जिसका प्रयास बहुत वर्षों से शुरू हो चुका है। भारतीय उद्यमिता की पहचान हम जागृत करके उसकी नई दक्षता और नए सोच की सृजन का प्रयास तो करते हैं, लेकिन उस अभिनव के प्रयास के जागृत करने में हमें और सशक्त कदम उठाने होंगे। It is a wonderful thought to celebrate the independence of our country with such intense feelings and so much of fanfare, because I believe it will go a long way in fostering the spirit of the freedom struggle. And what is the spirit of the freedom struggle? The spirit is not only the service to the nation, but the readiness to make sacrifices for the sake of the good of the country. I believe in a free country like ours, the best way to serve the country is to judge your action in terms of the interest of the last man in the queue. You make sure that your actions benefit the commonest of the common man. Well, rather than articulating my feelings, my emotions, and expressing my thoughts, I would prefer reading this timeless poem by the revered Rabindranath Tagore, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth,
where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.